We will start class in 2 minutes. Hello students, good evening. I hope you have revised whatever I taught you yesterday. The PDF of those environment lectures will be shared to you very soon. So yesterday we had completed till wetland, half of the wetland we had completed. What are wetlands and the different kind of wetlands, whether it is mangrove or mud cracks or other wetlands, we have read about them. And we have also read about the basic terminology of environment. So this is one of the basic structure of environment that we have covered. Now today we will start from the conservation part of wetland. See, one more thing is there, that organizations, whether they are international, national, NGOs, or these kind of things, I will cover them very briefly. The point is that UPSC asks this organization, it is true, but there are hundreds of organizations, so it is almost impossible to cover all of them, first of all. Secondly, all the organizations that have been covered in book, whether you will read Shankar IS or PM of IS or any other environment books, they have covered all those organizations which have been already asked in the exam. So it is not such a list that you can expect that they will ask other questions from that list, because this is the list of those organizations which have been already asked in exam. Second thing is that the list of these organizations make the study of environment very exhaustive, and then people start skipping the core part or the understanding part of the environment. So whether it is national parks or other things, so people start associating international organizations with environment. So in that way also, to save your time, I will be focusing mostly on the core aspect of environment and not on the international organizations and other things. Okay, so just a second. So as we can see that yesterday we had finished mangroves, then the type of mangroves which are found in India, which state has the maximum mangroves, and then which are the regions where you can find mangroves. Then we have also read about the features of mangroves. So today we will talk about the measures to protect wetlands. And if you remember, what is the wetland? Any land which is almost 6 meters deep or shallow, whatever you want to say it. If it is 6 meters or less, then it can be called wetlands. If it is more than 6 meters, then it can be a river, a lake, or anything else. Okay? Now in wetlands, the first organization is Wetland International. Wetland International is the major organization. It is an NGO. See, the organizations can be intergovernmental. Intergovernmental means in which the governments are parties, or they can be NGOs. So NGOs are free forming groups, open groups. In that, it is a civil society. It is a part of civil society. It is a global organization that works to sustain and restore wetlands, and it does research, engages with government, etc. So very generic work, but just you have to remember it is an NGO.
Then second, what India has done first is National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystem. Okay, so it is a combination of two programs. दो programs को combine करके इसको बनाया गया है. It is for to conserve lakes and wetlands both. So earlier there was a National Wetland Conservation Program and National Lake Conservation Program. So उन दोनों को merge करके National Conservation of Ecosystem, National Plan for Conservation of Ecosystem बनाया गया है. It is a central sponsored scheme. दो schemes होती हैं, central sponsored and central sector. Whichever central sector होती है उस पे 100% जो फंड होता है वो गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है. सेंट्रल जो स्पॉन्सर्ड होती है उसमें दे शेयर. तो इसमें शेयरिंग क्या है 70-30, मतलब 70% जो सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करती है और जो 30% है वो स्टेट गवर्नमेंट शेयर करती है. फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट इट इज 90-10. ठीक है, 90% विल बी बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10 बाय स्टेट गवर्नमेंट. दिस इज द सेम स्ट्रक्चर फॉर मेनी अदर schemes in India also. ठीक है, so the criteria for identification is same as Ramsar Convention. How do we identify which is wetland and which is not? So the definition of wetland has been taken up from the Ramsar Convention. Okay, इस पे what is the work of central government and what is the work of state government? जो central government है, it does the overall coordination, financial and technical assistance. जितना भी आपका मेजर कोऑर्डिनेशन होता है, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस होता है, वो करती है. एंड स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड. तो यू कैन सी हियर कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका मेनली पॉलिसी डायरेक्टिव टाइप का वर्क है कि इट विल ओवरलुक द वर्क एंड अदर थिंग्स. और जो स्टेट गवर्नमेंट है इट विल एक्चुअली मैनेज द वेटलैंड्स. तो वेटलैंड्स विल बी मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट बट इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि एक ओवरआर्चिंग पॉलिसी बनाएगी. नाउ देयर आर वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010. कोई भी चीज होती है सबसे पहले लॉ होती है ना, लॉ. बट लॉ जो होता है वो एक ब्रॉड स्केलेटन होता है, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क होता है. लॉ डज नॉट कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग. ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ अंडर डेप्थ इन विच लॉ कैन नॉट गो. तो जब लॉ आ जाता है तो उसके अंदर रूल्स बनते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स फॉर अदर काइंड ऑफ थिंग्स, है ना. तो उसी तरीके से वेटलैंड्स कंजर्वेशन रूल्स बना है किसके अंडर, अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर. किसने इसको नोटिफाई किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट. और ये क्या करते हैं जो रूल्स हैं, इट मेनली स्पेसिफाइज एक्टिविटीज हार्मफुल टू वेटलैंड. सो व्हिचएवर एक्टिविटीज आर हार्मफुल टू वेटलैंड उसको ये रोकने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सेट्रा. इसके अलावा इन रूल्स ने एक बॉडी भी स्टैब्लिश की है जिसका नाम है सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी. ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है. तो ये ओवरऑल किसके तहत हुआ है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के एक्ट के तहत हुआ है, वाटर एक्ट के तहत नहीं हुआ है. ठीक है, ये कंफ्यूजन हो सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम्स. हाँ, वन मोर थिंग, व्हेन वी विल फिनिश एनवायरमेंट, ऑब्वियसली आफ्टर द हाई यील्डिंग क्लासेस, मैंने आपको लिस्ट भेज दी है हाई यील्डिंग क्लासेस के किसके लेंगे. बट आफ्टर वी हैव कवर्ड एनवायरमेंट, द सेकंड थिंग वी विल डू इज टू कवर योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना. तो जो आपके एनवायरमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और उनको ब्रांच आउट करके अच्छे से हम कवर कर देंगे. प्लस वी हैव कवर्ड योर बेसिक एनवायरमेंट, सो इट विल ऑलमोस्ट कवर योर almost all of the environment will be covered. ठीक है, whichever is doable. Obviously a large part of paper is not doable, कोई नहीं कर सकता है उसको, but doable part को हम cover कर लेंगे. Then पहले rules थे 2010 के wetlands conservation and management rules, दूसरे आए 2017 में. इन्होंने 2010 rules को replace कर लिया है. ठीक है, इस पे केवल आपको सबसे important चीज याद रखनी है, और remember कि it has decentralized wetland management. मतलब कि जो major power है to protect wetlands has been given to state government. Just remember this thing. ठीक है, so they have decentralized the wetland management by giving states power not just to identify and notify wetlands but also to keep a watch on prohibited activities. So it is state government who will say कि जो prohibited activities है they should not happen in wetlands. इसके बाद इन्होंने एक कमिटी बनाया है जिसका नाम है नेशनल वेटलैंड कमिटी. ठीक है, इसको कौन हेड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के सेक्रेटरी हेड करते हैं. ठीक है, उसके अलावा दूसरी है स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी. इसको एनवायरमेंट मिनिस्टर हेड करेंगे जो स्टेट के हैं. इट विल आइडेंटिफाई एंड नोटिफाई वेटलैंड फॉर प्रोटेक्शन. सो दे विल आइडेंटिफाई एंड नोटिफाई द वेटलैंड्स फॉर प्रोटेक्शन एंड डेवलप अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज टू बी रेगुलेटेड एंड परमिटेड. ठीक है, तो जो आपका नेशनल बॉडी वो मेनली मॉनिटर करेगी वेदर दे आर वर्किंग और नॉट, बट जो लिस्ट प्रिपेयर करेगी वो कौन करेगी, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी करेगी. हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, फॉलोइंग एरियाज कैन नॉट बी नोटिफाइड एज वेटलैंड्स. ठीक है, ये जो अब मैंने चीजें बताऊंगा अभी, दे कैन नॉट बी नोटिफाइड एज वेटलैंड्स. ये इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम. तो पहला क्या है, रिवर चैनल्स. ऑब्वियसली रिवर्स कैन नॉट बी नोटिफाइड एज वेटलैंड. पैडी फील्ड्स, ऑब्वियसली आप अगर
चावल उगा रहे हो अपने खेत पे और आपको ही खेत पे वेटलैंड घोषित कर देंगे आपके खेत को, तो आप खेती कहाँ करोगे, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, पैडी फील्ड नहीं होगा। ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज फॉर ड्रिंकिंग वाटर, एक्वाकल्चर, साल्ट प्रोडक्शन, रिक्रिएशन, इरिगेशन पर्पस, इन सब के लिए जो आपने वाटर बॉडी बनाई है उसको नहीं कर सकते हैं। जो एरियाज, ये इंपॉर्टेंट है, एरियाज अंडर फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011। इन एक्ट्स के तहत जो एरियाज होते हैं उन एरियाज को आप वेटलैंड रूल्स के अंडर यू कैन नॉट नोटिफाई इट एज वेटलैंड्स, ठीक है? उसके अलावा ये प्रोहिबिट करते हैं कन्वर्जन ऑफ एनी वेटलैंड टू नॉन वेटलैंड, ठीक है? इस पर यूजेस स्पेशली लाइक इंडस्ट्री वगैरह अगर आप सेट कर रहे हो तो वो इशू इज द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑन प्रपोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ओमिट प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज फ्रॉम द लिस्ट। ये एक क्रिटिसिज्म है कि जो प्रोहिबिटेड लिस्ट है, फॉर एग्जांपल कि आप वहां पे फुटबॉल फील्ड नहीं बना सकते, जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, है ना? अब अगर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वो ये चीज हटा सकते हैं, है ना, कि यू कैन बिल्ड अ फुटबॉल। तो इफ यू कैन रिमूव द प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज फ्रॉम द लिस्ट, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट, है ना? सो दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस रूल। नाउ नेक्स्ट इज रामसर कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स इन यूपीएससी। सो इट इज अ ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स, वेटलैंड्स बचाने के लिए इंटरनेशनल ट्रीटी है ये। रामसर एक साइट है ईरान पे, इसलिए वहां पे इसका नाम पड़ गया है, और ये 2 फरवरी को साइन की गई थी, इसीलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाया जाता है, ठीक है? इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इट इज वाइस यूज प्रिंसिपल, कि मतलब whenever you can use wetland, so using wetland is not completely prohibited, however the use should be wise, ठीक है? It should be very लॉजिकल यूज, यू शुड नॉट एक्सप्लॉइट इट सो मच कि जो पूरे की पूरी वेटलैंड है वो डिस्ट्रॉय हो जाए या खत्म हो जाए। सो इट इज बेस्ड ऑन वाइस यूज प्रिंसिपल। नाउ इट डिफाइंस आल्सो वेटलैंड, ये वेटलैंड्स को डिफाइन भी करता है कि एरिया सच एज मार्शेस, पेंस एंड अदर थिंग जो कि 6 मीटर से ज्यादा गहरा नहीं हो, बस उसको, है ना? इस पे आपके राइस पैडी, साल्ट पैन्स, लेक्स, रिवर्स, ग्रासलैंड्स, कुछ भी आप इंक्लूड कर सकते हो उस पे, ठीक है? ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट हैज नॉट इंक्लूडेड दिस थिंग्स, बट दे कैन बी इंक्लूडेड। क्राइटेरिया क्या है रामसर कन्वेंशन के अंदर, ठीक है? तो दे शुड बी यूनिक वेटलैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे किसी कॉमन वेटलैंड को आप नहीं कर सकते, वहां पे इंडेंजर्ड स्पीसीज होनी चाहिए। दे शुड बी एसेंशियल स्पीसीज, एसेंशियल स्पीसीज का मतलब ये है कि इफ दोस स्पीसीज डू नॉट एग्जिस्ट देन दैट वेटलैंड में आल्सो विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? उसके बाद स्पीसीज प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, टू प्रोटेक्ट द लोकल बॉडीज, वाटर बर्ड्स होनी चाहिए वहां पे, एंड इंडिजिनस फिशेज होनी चाहिए, ठीक है? सो दीज आर सम ऑफ द क्राइटेरिया जिसके अंदर अगर है तो दैट वेटलैंड शुड बी बॉट under Ramsar Convention, ठीक है? Now responsibility of contracting parties, मतलब whoever are accepting कि we are going to accept the Ramsar Convention, what is their duty? So they need to identify and place suitable wetlands in the list of wetlands of international importance, वो कर सकते हैं Ramsar list जिसको बोलते हैं, and they are expected to manage their sites, ठीक है? तो आपने कोई भी for example आपने चिल्का लेक को बोला कि we have to protect it, so they will put it in Ramsar list, and then it is expected that they will protect चिल्का लेक। तो ये एक तरीके का मोरल और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन उनके ऊपर आ जाता है, ठीक है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल पार्टीज कौन कौन से हैं रामसर कन्वेंशन के? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये एक ये एनजीओ, इनके बारे में भी हम डेप्थ में पढ़ेंगे। IUCN, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड इंटरनेशनल, WWF एंड इंटरनेशनल वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट। तो ये क्या है? ये पार्टनरिंग पार्टनर्स हैं इसके, ठीक है? इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं। इसके अलावा जो कुछ कन्वेंशंस हैं, जैसे कि कन्वेंशंस फॉर बायोडाइवर्सिटी या UN कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या डेजर्टिफिकेशन, CMS यानी कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, सो दीज आर आल्सो कॉम्प्लीमेंटिंग रामसर कन्वेंशन, ठीक है? अब रामसर साइट क्या है? तो व्हेन अ कंट्री साइंस इट मस्ट डेजिग्नेट एटलीस्ट वन वेटलैंड। अगर आपने रामसर कन्वेंशन साइन किया तो एटलीस्ट एक वेटलैंड जो होना चाहिए उसको आप वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बनाओगे, ठीक है? तो जो फर्स्ट वर्ल्ड साइट थी वो कोबोर्ग पेनिनसुला था इन ऑस्ट्रेलिया। दो चीजें याद रखनी है कि सबसे ज्यादा वेटलैंड्स इस दुनिया में किसमें है? अगर साइट्स के बारे में बात करेगा तो यूनाइटेड किंगडम में, है ना? मैक्सिमम वेटलैंड्स आर इन रामसर वेटलैंड्स, ठीक है? नॉट वेटलैंड्स, रामसर वेटलैंड्स मैक्सिमम आर इन यूनाइटेड किंगडम। और अगर एरिया वाइज बोलोगे तो बोलीविया में हाईएस्ट वेटलैंड्स है एरिया, अंडर एरिया इन
रामसर कन्वेंशन, ठीक है। तो अ पार्टी अब क्यों कर सकती है, बिकॉज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इट कैन डिलीट और रेस्ट्रिक्ट द बाउंड्री बट इट मे बी कंपनसेटेड बाय एडिशनल रिजर्व, सो नो रामसर साइट हैज बीन एवर डिलीटेड दिस वे। इट इज इंपॉर्टेंट कि जो भी रामसर साइट है उसको आप हटा सकते हो, लेकिन जब आप उसको हटा रहे हो, जो भी एरिया आप उसका हटा रहे हो, उतना ही एरिया आपको कहीं और पे वेटलैंड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आज तक कोई किसी ने भी ऐसा नहीं किया है कि उन्होंने अपने रामसर साइट को हटाया हो, ठीक है। अगर ट्रांस बाउंड्री साइड है, मतलब देयर इज अ वेटलैंड व्हिच इज बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में, तो जो दोनों कंट्रीज है वो अपना अपना साइड मैनेज करेंगे, ठीक है। सो देयर इज नो इंटरनेशनल बॉडी कि वो पूरे वेटलैंड को देखेगी, बट बोथ कंट्रीज विल लुक आफ्टर देयर साइड। देन रामसर कन्वेंशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, ठीक है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड मतलब होता है कि वो साइट्स विच आर एट रिस्क और इन फ्यूचर दे विल बी इन रिस्क, ठीक है। तो अगर रिस्क में अभी नहीं भी हैं बट इट फील्स दैट इन फ्यूचर दे विल बी थ्रेटेंड, दे कैन बी बॉट अंडर मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड ऑफ रामसर साइट। इंडिया में दो हैं, क्योलादेव और लोकटक। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ABCDEFGHIJKLM, है ना, तीनों लगातार। तो क्योलादेव लोकटक क्या है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है। चिल्का लेक जो है उड़ीसा में, इट वाज आल्सो अंडर मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, हाउएवर लेटर इट वाज रिमूव्ड, ठीक है। तो अब चिल्का लेक नहीं है, केवल क्योलादेव और लोकटक है। रामसर साइट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा रामसर साइट स्टेट में कौन से स्टेट में, पंजाब, सॉरी यूपी में है, एंड 8, देन सेकंड इज पंजाब। सो दिस इज द बेसिक जो आपका फ्रेमवर्क है, जो बेसिक एक फ्रेमवर्क है ऑफ रामसर साइट्स कि किस तरीके से वो काम करते हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक लीगल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो इंडिया का लीगल स्ट्रक्चर है वो भी हमने इसमें डिस्कस किया हुआ है। सो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, हम रामसर साइट्स पढ़ेंगे कुछ तो, मतलब इतना जितनी डेप्थ में ये नोट्स बने हुए हैं, दिस इज मोर देन इनफ, है ना। इससे डेप्थ में आपको पूछने की जरूरत नहीं है। ये आपका ज्योग्राफी प्लस जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है दोनों कवर कर रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इफ यू वांट तो आप इसको मैप में मैप आउट कर सकते हो, बाकी इट इज गुड टू गो, ठीक है। तो रामसर साइट सबसे पहले कौन सी है, अष्टमुडी वेटलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। अष्टमुडी वेटलैंड कहाँ पे है, कोलम। कोलम इज अ डिस्ट्रिक्ट इन केरला। दो रिवर्स यहाँ पे ड्रेन करती हैं, पहली है कल्लड़ और दूसरी है पलीचल, ठीक है। जो अष्टमुडी वेटलैंड है यहाँ से नेशनल वाटरवे 3 पास करता है, ठीक है। तो नेशनल वाटरवे 1 से लेके 6 आपको याद होने चाहिए कौन से कहाँ करता है। तो जो नेशनल वाटरवे 3 है, इट पासेस थ्रू इट एंड इट फॉर्म्स एन एस्चुअरी एट अ सी नियर नेंदकारा, जो एक हार्बर है, ठीक है, नेंदकारा हार्बर वहां पे। तो दिस इज अष्टमुडी इन केरला। दूसरी है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व आपका पंजाब में, ब्यास रिवर ऑब्वियसली। इट इज 185 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ ब्यास। ये ब्रेडेड चैनल है। ब्रेडेड चैनल मतलब कि जैसे चोटियां होती हैं लड़कियों की, सो उस तरीके से जो ब्रेडेड चैनल होता है, जब रिवर ऐसे बहती है तो इसको ब्रेडेड चैनल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, तो पहला है इंडस रिवर डॉल्फिन और दूसरा है घड़ियाल, ठीक है। तो जो इंडस रिवर डॉल्फिन है ये इंडेंजर्ड है, लेकिन जो घड़ियाल है इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अभी वी विल डिस्कस अबाउट दीज एनिमल्स आल्सो, बिकॉज जो एनिमल बिहेवियर है एनिमल इट इज आल्सो आस्क्ड इन यूपीएससी। बस अभी जनरल आपको आइडिया रखना है कि जो इंडस रिवर डॉल्फिन है वो कहाँ पाई जाती है, ब्यास में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज भिटरकनिका मैंग्रोव्स। ये आपके उड़ीसा में पाया जाता है। भिटरकनिका इज वेरी वेरी फेमस साल्ट वाटर लेक, और यहाँ पे गहिर माता मैराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इट इज फेमस फॉर ऑलिव राइडली टर्टल्स, ठीक है, जो यहाँ पे रहते हैं, एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है। नेक्स्ट इज भोज वेटलैंड। भोज वेटलैंड भोपाल, राजा भोज के नाम पे ही भोपाल भी पड़ा है। तो इट वाज अ मैन मेड लेक, इट वाज मेड बाय राजा भोज। और यहाँ पे सारस क्रेन इज द लार्जेस्ट बर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, वो यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट इज चंद्राताल, हिमाचल। इट हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी आल्सो। चंद्राताल, हिमाचल प्रदेश। इट इज अ हाई एल्टीट्यूड लेक, और यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड बिकॉज ऑब्वियसली हिमाचल प्रदेश में तो हाइट पे है, और यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चिल्का लेक, वेरी फेमस। चिल्का लेक उड़ीसा में है, और ये ब्रैकिश लगून है। यस्टरडे वी डिस्कस लगून। लगून क्या होता है, वो पोर्शन विच हैज बीन ब्रोकन अप बाय सी, है ना, बीच में सैंड बार्स वगैरह या लैंड आ गया उसको बोलते हैं। एंड ये किसके रिवर पे है, दया रिवर के माउथ पे है। इट इज द लार्जेस्ट कोस्टल लगून, एंड देन बर्ड्स एज फार एज कैस्पियन सी एंड एरल सी ट्रैवल हियर, ठीक है। इट इज द फर्स्ट वेटलैंड अंडर रामसर कन्वेंशन जो इंडिया में है। तो दो फर्स्ट वेटलैंड्स थी, चिल्का लेक एंड
ठीक है, लेक। सो यहाँ पे जो एक बर्ड सेंचुरी है वो है नालबाना बर्ड सेंचुरी, विच इज इन इट्स कोर रीजन, और यहाँ पे इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, इरावदी, देखो इंडिया में 3 डॉल्फिन आर योर क्रूटेशियंस। ठीक है, डॉल्फिन मतलब, क्रूटेशियंस का मतलब ये होता है कि ये मैमल्स होती है एक तरीके की, जैसे वेल्स है वो भी मैमल्स होते हैं ना। मेजरली जो डॉल्फिन है दे आर फाउंड इन सी, है ना, लेकिन रिवर्स में भी कुछ डॉल्फिन पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट बीइंग इंडस रिवर डॉल्फिन, गंगा रिवर डॉल्फिन एंड इरावदी डॉल्फिन। इंडस रिवर डॉल्फिन इंडिया में केवल एक जगह पाई जाती है, ब्यास रिवर पे। गंगा रिवर डॉल्फिन इन डिफरेंट रिवर्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज दे आर फाउंड। इरावदी डॉल्फिन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ओनली फाउंड इन, ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट है दीपोर बील। दीपोर बील जो ये असम में पाई जाती है एंड इट इज ऑन द फॉर्मर चैनल ऑफ ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट इज ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, जो कि कोलकाता के पास है। नेक्स्ट इज हरीके वेटलैंड। हरीके वेटलैंड पंजाब में है एंड इट इज, हरीके बराज भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंड इट इज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ, एक सेकेंड, वेट, आई विल जस्ट स्विच इट ऑफ, देयर इज सम प्रॉब्लम, कुछ हो रही है इस पे, आई विल स्टॉप इट एंड देन आई विल अगेन स्टार्ट इट, जस्ट अ सेकेंड। Just a second, there is some technical issue. I will just open it again. Hello, am I audible? Yes. Yes, हाँ, sir. मेरी आवाज आ रही Yes, है? sir. Yes. Just a second, I'll just turn it off and turn it on. My this machine is some problem in that. Just hold on for just 2 minutes.
Okay, we will start again. I think there won't be any problem now. I don't know why it was hanging my device. I hope I'm audible. So, no, just a second. Okay. Okay, we had done till Horika Wetland. Next is Horika Wetland. Now there is different Horika. Horika Wetland is in Srinagar and it is near Jhelum Basin. Okay, Jhelum is a tributary of Indus. Next is Kanjali Wetland. It is in Punjab and it is holy because it is associated with Guru Nanak, and Guru Nanak is the first guru of Sikhism. Next is Keoladev National Park, very important. It is in Rajasthan. It is an artificial lagoon. Okay, so man-made, and it has scrub vegetation. Okay, scrub meaning झाड़ फूड जिसको बोलते हैं, ठीक है. एंड देन इट हैज अ प्रॉब्लम ऑफ इन्वेसिव ग्रास जिसको हम लोग बोलते हैं पैस्पेलम डिस्टिकम, ठीक है. एंड देन साइबेरियन क्रेन जो है दैट कैन बी फाउंड हियर. नेक्स्ट इज केशोपुर मिनी कम्युनिटी रिजर्व. इट इज इन पंजाब. जो पंजाब एंड यूपी के हैं, इट हैज दीज आर वेरी न्यू एंड दीज डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल जो उनका इन्फ्लुएंस है या इंपॉर्टेंस है. सो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू देम वेरी ब्रीफली, ठीक है. जितना आपको जानना है उतना इट हैज बीन गिवन हियर. नेक्स्ट इज कोलेरू लेक. कोलेरू लेक इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज इन आंध्र प्रदेश एंड इट इज अ नेचुरल यूट्रोफिक लेक, ठीक है. यूट्रोफिक मतलब इसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो हाई के लेवल पे रहता है, ठीक है. एंड इट इज बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टा. Next is Loktak Lake. It was asked this year also, many times it has been asked. It is in Manipur. It is the largest freshwater lake in Northeast India. This was asked this year. And then यहाँ पे एक national park है very famous, केबुल लैमजाओ. एल लिखा हुआ है, it is wrong, ओ होगा यहाँ पे. केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क. It is the only floating national park of the world. Next is Nal Sarovar Bird Sanctuary. It is in Gujarat. It is a freshwater natural lake, ठीक है. And it is the largest in Gujarat. और यहाँ पे एक famous animal Indian wild ass पाया जाता है. Next is Nandur Madhameshwar. It is in Maharashtra and it is on the confluence of Godavari and Kadwa River. देन नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट इज इन पंजाब और ये शिवालिक फुट हिल्स पे है. एंड इंडियन पैंगोलिन, ठीक है. इट इज एन स्मॉल एनिमल. इट वाज आस्क्ड इन 2021 यूपीएससी आल्सो. तो आप उसकी फोटो देख सकते हो एनिमल की. वो पाए जाते हैं. इजिप्शियन वल्चर पाए जाते हैं यहाँ पे. और यहीं पे जो पंचशील था 1954 में, पंचशील बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इट वाज साइंड हियर, है ना, ठीक है. नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिमेंबर दैट. नेक्स्ट इज नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये उत्तर प्रदेश में है. इसको अब चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी इसका नाम कर दिया गया है, ठीक है. नेक्स्ट इज पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी. ये भी उत्तर प्रदेश में. यहाँ इट इज अ फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक. ऑक्सबो लेक वी ऑल नो व्हाट इट इज, कि जो रिवर मियांडर करती है तो वो पोर्शन विच गेट्स कट ऑफ फ्रॉम रिवर दैट बिकम्स ऑक्सबो लेक. और यहाँ पे आपको व्हाइट रम्प्ड वल्चर्स एंड इंडियन वल्चर्स मिल जाएंगे. बोथ आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड. So a lot of vultures in India, majority of them are critically endangered. Why they are critically endangered, that we will also discuss. Next is Point Calimere Wildlife Sanctuary and Bird Sanctuary. It is in Tamil Nadu. It is one of the last dry evergreen forest. Next is Pong Dam. It is in Himachal Pradesh और इसको महाराणा प्रताप सागर भी बोला जाता है. Next is Renuka Lake. It has also been asked. It is a natural wetland at freshwater spring, ठीक है. नेक्स्ट इज रोपर वेटलैंड. रोपर वेटलैंड कहाँ पे पाया जाता है? पंजाब में. ह्यूमन मेड वेटलैंड ऑफ एट द डाइवर्जन ऑफ सतलज. नेक्स्ट इज रुद्र सागर. रुद्र सागर आपका त्रिपुरा में है. एंड इट इज थ्री स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है. एक बहुत ही स्पेशल टर्टल होता है. टर्टल और टॉर्टॉइज में क्या अंतर होता है कि जो टर्टल्स होते हैं उसके पैर कुछ इस तरीके से होते हैं फॉर स्विमिंग. जो टॉर्टॉइज होते हैं उसके नॉर्मल पैर होते हैं फॉर वॉकिंग, ठीक है. तो यहाँ पे टर्टल पाया जाता है. नेक्स्ट इज समान बर्ड सेंचुरी यूपी. यहाँ पे सीजनल ऑक्सबो लेक पाई जाती है एट गंगा बेसिन. नेक्स्ट इज समसपुर बर्ड सेंचुरी. इट इज इन ऑल्सो इन यूपी. Then Sambhar Lake very famous, Rajasthan. Largest inland salt water of lake of India. और यहाँ पे flamingos पाए जाते हैं. Flamingos are pink colored bird. साइरस क्रेन की तरह दिखती है बट यार दे आर पिंक कलर, ठीक है. नेक्स्ट है संडी बर्ड सेंचुरी विच इज इन यूपी. देन सरसाई नवार झील. इट इज इन ऑल्सो इन यूपी. नेक्स्ट इज शाशकोट्टम लेक. यहाँ पे कोटा लिखा हुआ है, एम ऐड कर लेना. शाशकोट्टम लेक. इट इज केरला स्टेट्स मतलब केरला का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है. और यहाँ पे रिवर कल्लड़ जो है वो यहाँ से फ्लो करती है, ठीक है. नेक्स्ट इज सुंदरबन वेटलैंड. ऑब्वियसली इसमें हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे. सुंदरबन वेटलैंड इट इज लार्जेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो वेटलैंड है. नेक्स्ट इज सुरिंसर मनसर लेक. इट इज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट इज नियर
झेलम बेसिन, ठीक है। नेक्स्ट इज सोमोरिरी। सोमोरिरी हमने ज्योग्राफी के क्लास में भी पढ़ा हुआ है, इट इज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, और ये ब्रेकिश लेक है, एंड इट इज द ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ब्लैक नेक्ड क्रेन, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस, एंड बार हेडेड गीज। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो बार हेडेड गीज है, इट इज द बर्ड विच कैन फ्लाई इन द हाईएस्ट एल्टीट्यूड इन द वर्ल्ड। यहाँ पे स्टेपीज मतलब जो आपके टेम्परेट ग्रासलैंड है वो भी पाए जाते हैं। उसके अलावा तिब्बतन वाइल्ड एस एंड तिब्बतन शीप, जिसको अर्गली बोला जाता है, वो भी यहाँ पे यू कैन फाइंड इट, ठीक है। नेक्स्ट इज अपर गंगा रिवर। अपर गंगा रिवर में गैंगेटिक डॉल्फिन पाए जाते हैं एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज वेम्बनाड कोल। वेम्बनाड कोल इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ केरला, इट स्पैन्स इन अराउंड 4 districts of Kerala, and it is the second largest wetland after Sundarban, ठीक है। It is also the longest lake of India. Next is Wular Lake. Wular Lake in the Union Territory of Jammu and Kashmir, and it is the largest freshwater lake of India. Next is Asan Barrage. जो असन बराज है वो आपके उत्तराखंड में पाया जाता है इन द असन रिवर, और यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड रीड लिखा हुआ है, रेड कर लेना इसको, रेड हेडेड वल्चर एंड व्हाइट रम्ड वल्चर पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज कन्वर ताल। कन्वर ताल इज इन बिहार, यहाँ पे इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है वहां पे है ये। इट इज इंपॉर्टेंट स्टॉप ओवर फॉर एशियन सेंट्रल फ्लाईवे। एशियन सेंट्रल फ्लाईवे क्या है कि अगर आप एक रफ में मैप बना लेता हूँ एशिया का, एक एशिया का मैप है, तो जो सेंट्रल एशिया है वहां पे एक डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन पे जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करती हैं साउथ, एंड देन दे अगेन गो बैक टू देयर सेंट्रल एशियन रीजन, ठीक है। तो ये जो पाथवे, जो एक रोड है, इसको सेंट्रल एशियन पाथवे बोला जाता है, ये फ्लाईवे बोला जाता है। और जो कन्वर ताल है इट इज अंडर दिस, ठीक है। इसमें 5 क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर्स हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट काइंड ऑफ योर birds are also found here. Then next is Sur Sarovar. Sur Sarovar जो है it is in Agra, अभी recently add किया गया है, this is also in Central Asian flyway. Next is Lonar Lake, very special lake because ये एक एंडोहेरिक्लोक्स बेसिक, कहने का मतलब ये है कि एक मेट्रॉइट आया था, एक मेट्रॉइट स्पेस से आया था और वो गिरा था, तो उसके इम्पैक्ट से जो क्रेटर फॉर्म हुआ था उस पे ये लेक बन गई है ना। एंड इट लुक्स वेरी पिंकिश ऑल्सो, बहुत पिंक कलर की दिखाई देती है। इट इज अ वेरी हाईली सैलाइन एंड हाईली एल्कलाइन लेक, एंड इट लुक्स पिंक बिकॉज ऑफ एक बैक्टीरिया वहां पे बोला जाता है जिसको हेलो आर्केई बैक्टीरिया बोला जाता है। बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया जो ये आपकी लेक है इट अपीयर्स पिंक, ठीक है। लास्ट इज सोकार। सोकार जो इट इज फाउंड इन लद्दाख रीजन एंड इट इज द सेकंड ऑफ मतलब सेकंड वेटलैंड ऑफ लद्दाख। देन इट इज अ हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड एंड इसको व्हाइट लेक भी बोलते हैं, ठीक है। व्हाइट लेक क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ व्हाइट साल्ट जो है उसका एफ्लोरेसेंस, व्हाइट साल्ट जो है वो ग्लो करता है बिकॉज ऑफ दैट। और यहाँ पे ब्लैक नेक्ड क्रेन्स पाए जाते हैं, ठीक है, जैसा हमने पहले भी देखा था, सोमोरिरी पे भी पाए जाते हैं। एरिया वाइज जो लार्जेस्ट है वो है सुंदरबन, देन सेकंड इज भितरकनिका, देन वेम्बनाड कोल, देन चिल्का, एंड द स्मॉलेस्ट इज रेणुका, ठीक है। रेणुका इज इन हिमाचल प्रदेश। ओल्डेस्ट जो है वो है चिल्का एंड केवलादेव घाना नेशनल पार्क। ये दोनों वेटलैंड जो है ये ओल्डेस्ट है, वी हैव डिस्कस्ड इट आल्सो। ये पोर्शन हमने कल कवर कर दिया था, इवोल्यूशन ऑफ बायोस्फीयर, सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, बायोडाइवर्सिटी एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना। जस्ट इन 20 seconds वी विल स्टार्ट इट। Okay, we will start. One second. The see overall अगर आप देखोगे
तो इट इज भितरकनिका अगर आप एरिया वाइज पूरा देखोगे। लेकिन इफ यू विल जस्ट लुक एट वेटलैंड, देन सुंदरबन के बाद वेम्बनाड पोल इज द लार्जेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरा प्रोटेक्टेड एरिया देखोगे तो भितरकनिका है, ठीक है। बट वैसे इन जनरल अगर देखोगे तो सुंदरबन एंड वेम्बनाड पोल दीज आर द लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट। सो बायोडाइवर्सिटी सिंपल सा मतलब होता है कि द वेरिएशंस दैट कैन बी फाउंड, है ना, द डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स दैट कैन बी फाउंड, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। सो वेरिएशन इन प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। बट जो मोस्ट ऑफ द वेराइटी है, आप इंडिया को सॉरी नॉट इंडिया, अर्थ को अगर आप देखोगे तो जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन मतलब द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। एंड एज यू विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ, जो बायोडाइवर्सिटी आपकी इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। सिमिलरली जब आप पहाड़ों की बात करते हो एल्टीट्यूड में, तो जैसे जैसे यू विल गो टू द हायर एल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप पहाड़ों पे हाइट पे जाते जाओगे, वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। जो ओवरऑल अगर आप स्पीसीज देखोगे तो 70% ऑफ द रिकॉर्डेड स्पीसीज इज एनिमल्स। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो एनिमल्स में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्लांट्स, पहला पॉइंट ये याद रखना है। सेकंड 22% क्या है, एल्गाई, फंगी, ब्रायोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म्स, दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। अमंग एनिमल्स जो है सबसे ज्यादा वैरायटी किसमें पाई जाती है, तो इंसेक्ट्स यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे अमंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्स क्या है, एनिमल्स है। विद इन एनिमल्स क्या है, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। दे आर ऑलमोस्ट 70% ऑफ ऑल एनिमल्स जो इंसेक्ट्स हैं। अगर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, इनवर्टिब्रेट्स मतलब दोज हु डज नॉट हैव स्पाइनल कॉर्ड, तो सबसे ज्यादा होते हैं इंसेक्ट्स, देन क्या होते हैं, मोलस्क्स। और वर्टिब्रेट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है फिशेस में एंड देन बर्ड्स, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो होते हैं इसके दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज रिचनेस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज। एक जगह पे अगर 4 टाइगर हैं, एक जगह पे एक टाइगर एक लायन है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा बायोडाइवर्स है ना। यहाँ पे भले स्पीसीज का पॉपुलेशन ज्यादा है बट स्पीसीज डाइवर्सिटी कम है। तो स्पीसीज रिचनेस इज वन थिंग। जो सबसे ज्यादा स्पीसीज रिचनेस है वो कहाँ होती है, तो ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, दे हैव द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। देन सेकंड थिंग इज स्पीसीज इवननेस। इसका मतलब ये होता है कि रिलेटिव एबंडेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो इसका मतलब ये होगा कि कहीं पे एक जगह पे 100 टाइगर्स पाए जाते हैं और एक लायन पाया जाता है, तो इवन दो इट इज बायोडाइवर्स, बट जो प्योर बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है उस पर ये नहीं आएगा, बिकॉज देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस, है ना। अगर 20 कोई स्पीसीज है एंड 40 दूसरी स्पीसीज है तो इट इज गुड इनफ। तो जो स्पीसीज रिचनेस भी होनी चाहिए और स्पीसीज इवननेस दोनों होनी चाहिए, ठीक है। जो आपकी डाइवर्सिटी है इट कैन बी, उसको आप डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी मतलब होता है कि विद इन एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम में या एक हैबिटेट में या एक जो जनरल एरिया है वहां पे कितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, उसको अल्फा डाइवर्सिटी बोलते हैं। बीटा डाइवर्सिटी इज बिटवीन टू इकोसिस्टम, इकोसिस्टम 1 एंड इकोसिस्टम 2, व्हेन यू विल कंपेयर देम एंड यू विल सी कि कितनी डाइवर्सिटी है। एंड देन गामा डाइवर्सिटी होती है। गामा डाइवर्सिटी में ओवरऑल जो विद इन अ रीजन, एक बायोम हो गया, एक बायोस्फीयर हो गया, वहां पे जो मतलब इट इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स एंड हैबिटेट, वहां पे ओवरऑल कितनी डाइवर्सिटी है उसको पाया जाता है, ठीक है। देन डाइवर्सिटीज के टाइप क्या क्या होते हैं, पहला होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स दैट आर फाउंड, है ना। तो फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप लोगों का ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होते हैं, इट इज kind of genetic diversity. So total number of genetic characteristics in a genetic makeup of species, ठीक है। It is important, it is mainly because of to adapt to the changing environment. तो क्योंकि जैसे जैसे environment change होगा there will be a lot of mutations, तो mutations के कारण जो आपकी genetic diversity है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये चीजें अब आपको जनरलाइज, आप खुद लॉजिक लगा के आपको निकालना है ना। यूपीएससी डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा इस नोट से, बट अब आप यहाँ पे म्यूटेशंस को, इवोल्यूशन को और जेनेटिक डाइवर्सिटी को यू हैव टू कनेक्ट इट। नेक्स्ट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। वी हैव डिस्कस कि स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो रिचनेस में भी होना चाहिए और इवननेस में भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मींस डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट्स दैट आर फाउंड इन वन इकोलॉजिकल रीजन। एक इकोलॉजिकल रीजन में कितने ज्यादा हैबिटेट्स हैं उसको बोला जाता है। स्टेबल जो कम्युनिटी है वो क्या होती है, स्टेबल कम्युनिटी मतलब जिसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं हो, तो देयर इज नॉट मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर एंड दे आर रेजिलिएंट टू ओकेशनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्टिविटी होता है वो ऑलमोस्ट इवन होता है थ्रू आउट द ईयर। तो वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी कौन सी हो जाएगी, फिर आपकी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि उनका जो टेम्परेचर वगैरह होता है, रेन वगैरह होती है, इट इज ऑलमोस्ट इवन थ्रू आउट द ईयर। एंडेमिज्म, एंडेमिज्म मतलब होता है स्पीसीज विच इज फाउंड इन अ डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लायन टेल्ड मकाऊ जो है वो वेस्टर्न घाट के अलावा कहीं नहीं पाया जाता इस दुनिया में, तो इट इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट।
Next is bioprospecting. Bioprospecting means exploration of biodiversity for commercially valuable genetic resources. जब आप इकोनॉमिकल वैल्यू निकालते हो बायोडाइवर्सिटी से तो उसको बायोप्रोस्पेक्टिंग करते हैं. बायोपायरेसी का मतलब ये होता है कि व्हेन यू यूज द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ अदर्स विदाउट परमिशन. ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया में बोलते हैं कि हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है. नाउ कोई फॉरेन कंपनी आती है और वो बोल देती है कि टर्मरिक को हम पेटेंट करा रहे हैं और कोई एंटीसेप्टिक एज ए एंटीसेप्टिक नहीं यूज कर सकता है हमारे अलावा टर्मरिक को. तो इट इज बायोपायरेसी बिकॉज वी हैव बीन यूजिंग टर्मरिक सिंस द एंशिएंट एजेस. ठीक है. नाउ टाइप्स ऑफ स्पीसीज, मतलब जिनको एक बेसिक एक टर्मिनोलॉजी है अंडरस्टैंड करने के लिए. जैसे पहली होती है कीस्टोन स्पीसीज. कीस्टोन स्पीसीज वो होती है कि जिसका एडिशन और लॉस से देयर विल बी अ मेजर चेंजेस इन इकोसिस्टम. फॉर एग्जांपल एपेक्स प्रेडेटर्स. फॉर एग्जांपल एक लायन है जो कि किसी जंगल में पाया जाता है. नाउ इफ ऑल द लायंस ऑफ दैट जंगल विल डाई, सो व्हाट विल हैपन कि जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं या सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, दे विल इंक्रीज अ लॉट बिकॉज देयर विल बी नो वन टू कंज्यूम देम. ठीक है. सो इट विल डिस्ट्रॉय द होल इकोसिस्टम, क्योंकि इतने ज्यादा भेड़ बकरियां हो जाएंगी, इतने ज्यादा डियर्स हो जाएंगे कि वो पूरे के पूरे जंगल को ही खा जाएंगे. ठीक है. तो कीस्टोन स्पीसीज वो होता है कि जिनका एडिशन और जो लॉस होता है इट कैन ब्रिंग मेजर चेंजेस इन your ecosystem. The next is endemic species, we have discussed कि जो केवल एक ही geographical area में पाई जाती है. Next is indicator species. ये mainly it shows environment condition. ठीक है. ये मतलब इनको sentinel मतलब संतरी जिसको बोला जाता है कि जो गेट के बाहर खड़े रहते हैं ना. So it generally what it means is कि if they are present then environment condition is very good or bad depending on which condition they survive. If they are not present in that region मतलब environment जो है deteriorate हो रहा है या better हो रहा है. The best example being frogs and lichens, especially lichens, है ना, जहाँ पे भी environment stress में आता है तो they will start dying. Next is invasive alien species. ठीक है. एलियन मतलब कि विच हैव बॉट फ्रॉम आउटसाइड. तो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज वो होती हैं विच ग्रोज रैपिडली देन नेटिव स्पीसीज. ठीक है. फॉर एग्जांपल लैंटेना कैमेरा. आपने फूल देखे होंगे कभी घूम रहे होंगे तो कि ऑरेंज कलर के छोटे 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 या फिर उसी पे ही पिंक और व्हाइट कलर के छोटे छोटे फूल्स होंगे. इट इज अ इन्वेजिव स्पीसीज. देन फॉल आर्मी जो वर्म होता है इट इज मेनली फॉर कॉटन. देन जो यूकेलिप्टस वेरी फेमस वाटर हाइकासिंथ. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इन्वेजिव स्पीसीज. ठीक है. जो कि नेटिव स्पीसीज को ओवरशैडो. फॉर एक और एग्जांपल आपका अमेरिकन गेको है कि जो आपके घर में छिपकली होती है येलोइश कलर की. इट इज एन इन्वेजिव स्पीसीज. या एक छिपकली होती है हल्की सी ब्राउनिश कलर की होती है ना, उस पे ब्राउनिश पैच होते हैं, वो हमारी इंडियन देसी स्पीसीज है. तो जो अमेरिकन स्पीसीज आई है ना, जो अमेरिकन गेको आया उसने उसको रिप्लेस कर गया उस छिपकली को. ठीक है. देन फ्लैगशिप स्पीसीज. फ्लैगशिप स्पीसीज वो होती हैं विच आर चोजन टू रिप्रेजेंट एन एनवायरमेंटल कॉज. ठीक है. फॉर एग्जांपल WWF है, उसका व्हाइट पांडा उसका लोगो है, तो इट बिकेम अ फ्लैगशिप स्पीसीज फॉर दैट. नेक्स्ट इज अम्ब्रेला स्पीसीज. अम्ब्रेला स्पीसीज की दो फीचर्स होते हैं. पहला कि दे आर सेलेक्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ एन एंटायर इकोसिस्टम. एंड सेकंड क्या होता है कि इनका जो इकोसिस्टम का नीड होता है मतलब उनका जो हैबिटेट नीड होता है इट इज वेरी लार्ज वेरी ब्रॉड. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल टाइगर्स, लेपर्ड्स एक्सेट्रा. देन फाइनली फाउंडेशनल स्पीसीज. फाउंडेशनल स्पीसीज मतलब होता है जो फाउंडेशन बनाती हैं. तो ये मेनली प्राइमरी प्रोड्यूसर होती है. फॉर एग्जांपल मैंग्रोव्स में फाउंडेशनल स्पीसीज क्या है? मैंग्रोव्स ही है. मैंग्रोव्स ही तो मैंग्रोव्स फॉरेस्ट बना रहे हैं. या कोरल्स की फाउंडेशनल स्पीसीज क्या है? कोरल्स ही है. केल्प फॉरेस्ट के क्या है? केल्प्स ही है. सो दे आर द फाउंडेशनल स्पीसीज व्हिच फॉर्म द इकोसिस्टम या जो लोकल इकोसिस्टम होता है. ठीक है. सो दिस इज बायोडाइवर्सिटी. नाउ ऑब्वियसली वी आर लूजिंग बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बॉडी है. इट इज IPBES, इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज. ये कहाँ पे है? बॉन, जर्मनी में. 130 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इज पार्ट ऑफ इट. और ये क्या करता है? जो साइंटिफिक लिटरेचर होता है बायोडाइवर्सिटी को उसको स्टडी करता है और अपने रिकमेंडेशंस वगैरह देता है. ठीक है. तो इसकी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं मतलब IPBES की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज 2019. इस पे इन्होंने बोला हुआ है कि अराउंड 1 मिलियन स्पीसीज जो है दे आर इन threat of extinction. Extinction का मेजर रीजन है लैंड डिग्रेडेशन, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन एक्सेट्रा. इन्होंने बोला इवल क्वार्टर मतलब 4 चीजें होती हैं जो सबसे ज्यादा हर्ट करती हैं बायोडाइवर्सिटी को. पहली है हैबिटेट लॉस, सेकंड इज ओवर एक्सप्लॉइटेशन, थर्ड इज एलियन स्पीसीज. ठीक है. एंड फोर्थ इज सेकेंडरी एक्सटिंक्शन. Now invasive species मतलब जो नॉन नेटिव होती हैं which do not live in that place but they have been brought from outside और वो लोकल जो स्पीसीज है उसको रिप्लेस कर जाती है. ठीक है. फॉर एग्जांपल यूकलिप्टस, टी प्लांटेशन,
वॉटल एकाकिया, लैंटेना कैमेरा, कैरेट घास, गाजर घास जिसको बोलते हैं, वाटर हाइकासिंथ, हाउस गेको जो मैंने बताया आपको वो, उसके अलावा प्रोसोपिस जूलिफोरा। प्रोसोपिस जूलिफोरा हमने पढ़ा है कि बन्नी जो ग्रासलैंड है गुजरात में उस पर बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। देन अनियन वीड, डबल गी, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर हर्टिंग द एनवायरनमेंट, दे आर इन्वेसिव स्पीसीज। ठीक है, इसके अलावा कुछ मिसलेनियस पॉइंट पढ़ लो। एक है प्रोजेक्ट रीहैब। ठीक है, प्रोजेक्ट रिहैब क्या है? टू प्रिवेंट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, इसको केवीआईसी, ठीक है, मतलब जो आपका खादी विलेज इंडस्ट्रियल सॉरी जो भी है कमीशन है ना, एक बार यू नो व्हाट इट इज, केवीआईसी, उसने उसको ये देख रहा है। तो उस पर ये क्या करते हैं कि जो जोन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट है, वहां से क्या होता है कि कभी कभी एलिफेंट्स वगैरह आएंगे और एक एग्रीकल्चरल पैच ऑफ लैंड है, वहां पे आके वो उसका एग्रीकल्चर तबाह कर देंगे। ठीक है, तो ये दीज आर द पॉइंट्स ऑफ ह्यूमन कंफ्लिक्ट। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो बी बॉक्सेस होते हैं, मतलब जो मधुमक्खियां होती हैं, उनको चारों तरफ लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ फेंस, एक फेंस क्रिएट कर जाएगा, क्योंकि बिकॉज वेर एवर देयर आर हनी बीज, जो एलिफेंट्स है वो वहां पे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये एक नेचुरल वे है, ठीक है, केवीआईसी का, टू प्रोटेक्ट दिस थिंग इन एलिफेंट्स, और ये प्रोजेक्ट रिहैब बोला जाता है। जूनोटिक डिसीजेस, जूनोटिक डिसीजेस आर दोज हाँ, इंडस्ट्रियल कमीशन, ठीक है, जूनोटिक डिसीजेस आर दोज डिसीजेस जो कि एनिमल से ह्यूमंस पे होती हैं। ठीक है, जानवरों से इंसानों पे चली जाती हैं। फॉर एग्जांपल रेबीज, अगर आपको कोई डॉग या मंकी या बैट काट ले तो आपको रेबीज हो सकता है। इबोला, नोवेल कोरोना वायरस, ये सब क्या है? जूनोटिक डिसीज है। नाउ कंजर्वेशन कैसे करना है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये इन सीटू भी हो सकता है, मतलब ऑन साइट, और एक्स सीटू भी हो सकता है, यानी कि ऑफ साइट। तो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटी कि आपको कैसे करना है। इन सीटू मतलब क्या होता है कि जहां पे जानवर रहते हैं उनके हैबिटेट पे, उनके घर पे आप उनको प्रोटेक्ट करते हो। ठीक है, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, नेचुरल रिजर्व। सो दीज आर ऑल इन सीटू कंजर्वेशन वेज। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसका नाम है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और ये जो है ये पॉलिसी फ्रेमवर्क आपको डिजाइन करती है। हम एक क्लास लेंगे, उस पर जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और लॉज हैं उसको कवर करेंगे, तो ये सब तब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आपको डिफरेंस याद रखना है। जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, इस पे राइट्स टू ऑल एक्टिविटीज लाइक हंटिंग, ग्रेजिंग एक्सेट्रा इज बैंड, मतलब पूरी तरीके से ये बैंड होते हैं, ये प्रोटेक्टेड होते हैं, अनलेस स्पेसिफिक ऑर्डर इज इशूड। तो अगर आप हंटिंग ग्रेजिंग नहीं कर सकते हो जब तक कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं गया है। तो सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट था वो था सतपुरा, जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो है, इट इज इन एमपी। देन सेकंड इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इस पे क्या होता है? राइट्स टू हंटिंग एंड ग्रेजिंग समटाइम्स गिवन टू कम्युनिटीज लिविंग इन फ्रिंजेस। ठीक है, तो इसका जो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का, इट इज लेस देन रिजर्व फॉरेस्ट। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्टेड होता है, सबसे सेफ होता है फॉर एनिमल्स, इट इज नेशनल पार्क, देन इट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन इट इज रिजर्व फॉरेस्ट, एंड लीस्ट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये क्या होते हैं? इट दे आर होम टू वेरियस इंडेंजर्ड स्पीसीज, कई सारी पाई जाती हैं। यहाँ पे जो ग्रेजिंग, फायरवुड कलेक्शन, ये सब अलाउड होता है बट रेगुलेटेड होता है। रिमेंबर दिस थिंग, ग्रेजिंग मतलब गाय भैंस चराना, फायरवुड कलेक्शन ये सब अलाउड होता है बट हेवीली रेगुलेटेड होता है। बट सेटलमेंट्स आर नॉट अलाउड, रिमेंबर दिस थिंग। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी सेटलमेंट्स मतलब आप घर वगैरह नहीं बना सकते हो एक्सेप्ट फॉर ट्राइबल सेटलमेंट्स, है ना। ट्राइबल्स को ज्यादा राइट्स मिले हुए हैं अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट, सो दैट्स व्हाई दे फॉर देम इट इज अलाउड। नेक्स्ट इज टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लेवल का ही उसको प्रोटेक्शन होता है, बट उसको मॉनिटर करता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को नहीं करता एनटीसीए, टाइगर रिजर्व्स को करता है। एंड इट इज बेस्ड ऑन कोर बफर स्ट्रेटजी। एक कोर एरिया होता है, एक बफर एरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर इज अ लार्ज एरियाज, मतलब एक बायोस्फीयर रिजर्व में कई सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्सेट्रा आ सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉर द लैंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल्स एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोटेक्ट एनिमल्स ऑल्सो प्लस प्रोटेक्ट लाइवलीहुड ऑफ लोकल स्पीसीज ऑल्सो।
ठीक है। सो वन कैन हैव वन और मोर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे कोर एरिया होता है, जो कोर एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी इज नॉट अलाउड, ठीक है। और जो बफर एरिया होता है वहां पे रिसर्च, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। एंड देन ट्रांजिशन एरिया, मतलब कि आपका नॉर्मल एरिया से ट्रांजिशन होने लगता है, यहाँ पे इकोलॉजिकली सस्टेनेबल सेटलमेंट, टूरिज्म एक्सेट्रा इज अलाउड, ठीक है। यहाँ पे क्रॉपिंग वगैरह भी अलाउड होती है। इफ यू विल गो टू एनी बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क वगैरह पे आप जाओगे तो जो मेजोरिटी ऑफ रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं वो ट्रांजिशन एरिया पे ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जो होते हैं दे आर रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे कोई भी राइट्स नहीं है किसी को, ठीक है। दे आर हाईली प्रोटेक्टेड एरिया, नो राइट्स टू एनीवन। और यहाँ पे ग्रेजिंग राइट्स भी नहीं है कोई। और जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ग्रेजिंग राइट्स थे, है ना। और जो भी इसको रेगुलेशन करता है वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन करता है। तो वट एवर राइट्स यू वांट और वट एवर थिंग्स यू वांट टू डू इन नेशनल पार्क, यू विल हैव टू आस्क चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। नेक्स्ट इज इको सेंसिटिव जोन। ये कौन नोटिफाई करता है? इको सेंसिटिव, नाम से ही पता चल रहा है, मतलब कि वो इकोलॉजिकल जोन विच इज वेरी सेंसिटिव। तो ये एरियाज होते हैं नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के। मान लो ये एरिया है, इसके आसपास का जो नेशनल पार्क के आसपास का जो एरिया होगा विच डज नॉट कम्स अंडर नेशनल पार्क, वो भी तो इको सेंसिटिव है ना, ठीक है। तो इसको किस एक्ट के तहत लाया जाता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये चीज याद रखना, ठीक है। कोई और एक्ट के तहत नहीं, क्योंकि ये जो नेशनल पार्क्स वगैरह हैं इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लाया जाता है। इको सेंसिटिव जोन, इसका जो ये जो टर्म है इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, लेकिन इसके तहत लाया जाता है। दे work as shock absorber on the transition zone. They reduce the man animal conflict, और ये वही बोला कि it does not have the word eco sensitive zone। और यहाँ पे कॉमर्शियल माइनिंग इंडस्ट्रीज कॉजिंग पोल्यूशन ये सब प्रोहिबिटेड होते हैं ना, बल्कि जो एग्रीकल्चर ग्रीन टेक्नोलॉजी वगैरह अलाउड होते हैं, जो आपका इको सेंसिटिव जोन है वहां पे। देन देयर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स। जो कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं स्टेट गवर्नमेंट बनाती है ऑन द एरिया ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पे राइट्स ऑफ कम्युनिटीज जो है वो इफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। एंड देन सेकंड इज कम्युनिटी रिजर्व, ये भी स्टेट करते हैं। तो कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व बोथ आर ईयरमार्क्ड बाय स्टेट। जो कम्युनिटी रिजर्व है वो कोई प्राइवेट एरिया होता है। कंजर्वेशन जो रिजर्व होता है वो स्टेट के लैंड पे होता है, जो कम्युनिटी रिजर्व होता है वो प्राइवेट एरिया पे होता है, वेयर एन इंडिविजुअल और कम्युनिटी हैज वॉलंटियर टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे भी इनके जो राइट्स हैं दे आर नॉट इफेक्टेड इन बोथ कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व। नेक्स्ट इज सेक्रेड ग्रोव्स। सेक्रेड ग्रोव्स मतलब वो स्पेशल प्लेसेस होती हैं जहाँ पे रिलीजियस कल्चरल ट्रेडिशन जो होता है वो होता है टू प्रोटेक्ट नेचर। फॉर एग्जांपल खासी एंड जयंतिया फॉरेस्ट। तो ये तो हो गया इन सिटू, मतलब आप घर पे प्रोटेक्ट कर रहे हो। एक्स सिटू मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को आप घर पे नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, तो उसको ले आके बाहर प्रोटेक्ट करते हो, ठीक है। सो वन एग्जांपल इज बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन्स में साइंटिफिकली प्लांट किया जाता है ट्री, श्रब्स एक्सेट्रा को। देन नेक्स्ट इज जू। जू जो होते हैं वो पहले क्या होते थे कि केवल पिंजड़े पे जानवरों को बंद कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा इट इज नॉट अलाउड, है ना। कि इवन इन जू इफ यू विल गो टू मॉडर्न जूस देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर एनिमल टू वॉक एंड स्लीप। एंड जो जू है वो नेचुरली ऐसे ही बनाए जाएंगे जो नेचुरल हैबिटेट्स एनिमल का होता है, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो वर्किंग फॉर द कंजर्वेशन ऑल्सो। एंड सीड बैंक्स, ठीक है। तो ये एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स हो गए। नाउ नेशनल एफर्ट्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, क्या क्या किया गया है? पहला है इको ब्रिजेस या इको डक्ट्स। इसका मतलब ये है कि जो लीनियर प्रोजेक्ट्स होते हैं, लीनियर प्रोजेक्ट्स मतलब जैसे आपका रोड हो गया, रेलवे हो गया, या टेलीफोन लाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन हो गया, तो एक फॉरेस्ट को वो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ना। सो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन इज वन प्रॉब्लम ऑफ आवर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो यहाँ पे इको ब्रिजेस बना देते हैं, तो अंडर या तो रोड के ऊपर या तो रोड के नीचे या जो भी चीजें हैं वहां पे उस पे ये इको डक्ट्स बनाते हैं टू इनहेंस वाइल्ड लाइफ कनेक्टिविटी। इस पे कैनोपीज भी बनाई जाती है। कैनोपी किसकी होती है? ट्रीज की। तो जो ढेर सारे पेड़ को आप लगा देते हो रोड के ऊपर, तो इट वर्क्स एज अ ब्रिज फॉर मंकीज, ठीक है। और कॉन्क्रीट अंडरपास या ओवरपास टनल्स बनाए जाते हैं फॉर लार्जर एनिमल्स लाइक एनिमल्स, एम्फीबियन टनल्स, ये सब बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वारंटाइन सेंटर्स टू चेक इन्वेजिव स्पीसीज। इसका सिंपल सा मतलब ये है, ये करता कौन है पहले ये याद रखना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये इंपॉर्टेंट है ना। तो कोई भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता इसको, ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है वो करता है। तो इस पे जो फॉरेन से आप जो भी चीजें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो, या स्पेशली इंपोर्ट कर रहे हो, तो दे विल चेक कि कोई ऐसी इन्वेजिव स्पीसीज तो उसमें नहीं आ रही है कि विच कैन हर्ट द नेशनल जो नेटिव स्पीसीज है उसको। और ये जो है CBIT, ये क्या कहते हैं, किसके अंडर काम करता है? डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटीन स्टोरेज के अंडर काम करता है, ठीक है। इसको ओवरऑल जो कंट्रोल ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज और पेस्ट है वो कौन देखता है? तो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड
फार्मर वेलफेयर देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नहीं देखती है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट लिख लेना जब नोट्स वगैरह बनाना, तो ठीक है। इट ऑल्सो प्रिपेयर्स द लिस्ट ऑफ वीड्स दैट शुड नॉट एंटर द कंट्री। कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। फर्स्ट इज वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट 6 स्टेट्स यानी कि गुजरात से लेके आपके केरला तक एक्सटेंडेड है। यहाँ पे हाई स्पीसीज एंडेमिज्म है। देन इट इज द हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड एंड इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट इज ईस्टर्न घाट, जो कि आपके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड सम एरियाज ऑफ कर्नाटका एंड तेलंगाना पे भी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रीज लाइक सैंडलवुड, जो कि सेशलम, या फिर जो आपकी रेड वुड्स होती है ना, जो भी मूवी भी आई है उस पे बेस्ड, तो ये यहाँ पे पाई जाती है ईस्टर्न घाट्स पे। वेस्टर्न घाट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 कमिटीज बनाई गई थी। पहली थी माधव गडगिल कमिटी, ठीक है, जिसको वेस्टर्न घाट्स एक्सपर्ट इकोलॉजिकल पैनल भी बोला जाता है। इस पे इन्होंने 64% ऑफ होल जो वेस्टर्न घाट्स हैं उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन कर दिया था, डिवाइडेड इनटू 1 2 3। तो ऑलमोस्ट 64% ऑलमोस्ट जो है वो पूरा का पूरा इन्होंने कवर कर दिया था। तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था इसको गवर्नमेंट के साइड से, बिकॉज इट ऑलमोस्ट मेड इट इम्पॉसिबल टू डू डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन वेस्टर्न घाट्स। तो उसको डाइल्यूट करने के लिए दूसरी एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था कस्तूरी रंगन कमेटी। इन्होंने 64% से 37% एरिया जो है इट वॉज बॉट अंडर इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में माइनिंग, क्वेरिंग या थर्मल पावर प्लांट, इन सब में बैन लग चुका है, ठीक है। उसके बाद 2018 में एक नोटिफिकेशन आया था, उस पर यह बोला गया था कि जो वेस्टर्न घाट का लगभग 57,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है उसको इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो है वो स्टैब्लिश कर दिया गया है। और यहाँ पे रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज, मतलब जो मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनको बैन कर दिया गया है, ठीक है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स, माइनिंग एक्सेट्रा। 2 इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। चिपको मूवमेंट, ठीक है, जिसको जो पहला चिपको मूवमेंट है 1730 में वो अमृता देवी ने स्टार्ट किया था, और जो दूसरा था वो सुंदरलाल बहिगुणा ने स्टार्ट किया था उत्तराखंड में, ठीक है। और उसी के देखा देखी द सेकंड मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन कर्नाटका, जिसको बोला जाता है अपिको मूवमेंट। नाउ सम इंटरनेशनल एफर्ट। अब आप इंटरनेशनल एफर्ट देख सकते हो, देयर आर अ लॉट ऑफ जो बहुत ज्यादा एरियाज हैं जिसको लाया गया है इस पे प्रोटेक्ट करने के लिए, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी, ठीक है। इट इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी, मतलब कई सारे कंट्रीज ने इसको साइन किया गया है। कब? ऑन अर्थ समिट इन रियो 1992। फोर्स में कब आई? 1993, मेनली टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट। 3 इंपॉर्टेंट फीचर है, याद रखना है आपको इसका, कि पहला तो टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। दूसरा सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, है ना, जो सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एंड देन फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, ये तीसरा पॉइंट है कि जो भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे बायोडाइवर्सिटी के उसको शेयर करना इक्वली, ठीक है। इट इज अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत कम ट्रीटीज है विच इज लीगली बाइंडिंग, इट इज वन ऑफ देम। एंड ऑल यूएन स्टेट्स एक्सेप्ट यूएस हैव साइंड इट। यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी तक इसको साइन नहीं किया हुआ था, ठीक है। एक होता है कन्वेंशन, उस कन्वेंशन के अंदर आते हैं प्रोटोकॉल्स, ठीक है। प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो मोस्टली लीगली बाइंडिंग होते हैं और वो एक कंक्रीट स्टेप बताते हैं हाउ टू मूव अहेड। तो सीबीडी के अंदर पहला जो प्रोटोकॉल है वो है कार्टागेना प्रोटोकॉल, ठीक है। इट कवर्स द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट वाज अडॉप्टेड इन 2004 में, 2003 में। कार्टागेना एक जगह है कोलंबिया में। एंड इट एड्रेसेस द ट्रांसफर, बेनिफिट शेयरिंग एंड बायोसेफ्टी स्पीसीज, ठीक है। तो जो आपका बेनिफिट शेयरिंग वाला एंगल है वो कवर करता है कार्टागेना प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज नगोया प्रोटोकॉल। इट इज रिलेटेड टू फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट्स फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज, और ये 2014 में आया है, ठीक है। Next is International Seed Treaty. International Seed Treaty is also known as International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. It is mainly to guarantee food security, ठीक है, and sustainable use of world's plant genetic resources, mainly to protect genetic resources, ठीक है. Next is Igf Biodiversity Target. ये इतना important अब नहीं रह गया because it is over now. देन शर्म एल शेख डिक्लेरेशन, ठीक है, ये इजिप्ट में हुआ था। कॉप सीओ मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 ऑफ सीबीडी। इसको आप कंफ्यूज मत करना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूएनएफसीसीसी का, है ना, वो अलग होती है, ये अलग है। तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब होता है व्हेन डिफरेंट कंट्रीज सिट टुगेदर एंड दे फॉर्म अ ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ टू मूव अहेड टू अचीव 2050 विजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू डील फॉर नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना इस पॉइंट को।
Next is United for Biodiversity. It is also important. It is a coalition of European Union, or it was on 2020. It is mainly formed to boost public awareness. ठीक है. Next is World Heritage Site. UNESCO का हम सबको पता है. दो World Heritage Sites कल्चरल भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, प्लस मिक्स्ड भी हो सकते हैं. इंडिया के एकमात्र मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है? यू कैन टेल मी इन द कमेंट अगर आपको पता है. Then next is Man and Biosphere program. ये भी it is a program of UNESCO, है ना. इस पे मेनली ये होता है टू प्रोटेक्ट, आपका बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करना है, और प्लस जो ह्यूमन के जो लोग वहां पे रहते हैं उनके जो लाइफस्टाइल है उसको भी प्रोटेक्ट करना है. ठीक है. नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. इन्होंने यहाँ पे डिलेटेड लिखा हुआ है, ऑब्वियसली इट इज डिक्लेयर्ड होगा यहाँ पे, है ना. ये गलत लिखा है, करेक्ट कर लेना इसको. इट हैज डिक्लेयर्ड जो 2021 से 30 का जो रीजन है, इट इज एज द डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन. ठीक है, टू रिस्टोर द इकोसिस्टम. नेक्स्ट इज, हाँ जी, कंचनजंगा. ठीक है, वेरी गुड. ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप रिस्टोरेशन. सी, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आप इस पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ. इसमें से कोई याद तो आपको कुछ तो याद रखने पड़ेंगे, ऑब्वियस बात है. कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी याद रहना पड़ेगा. जो ये सब होते हैं ना, जब जैसे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप रिस्टोरेशन है, ठीक है, कहाँ से याद रहेगा इसके ट्रिक ये होते हैं कि इनके कुछ जेनेरिक वर्क होते हैं. ठीक है, जेनेरिक वर्क यही होते हैं कि अब नाम ही से लिख रहा है फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप रिस्टोरेशन है, तो क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, दुनिया भर में क्या कहते हैं, अवेयरनेस फैलाएगा. या जो एक जेनेरिक वर्क है वो कर सकता है. इसमें जो ट्रिक होती है, जो खेल सकते हैं, वो यहाँ पे खेला जाता है कि जैसे ये इट इज अ नेटवर्क ऑफ IUCN, तो IUCN की जगह WWF कर देगा. या जो ट्रिक है वो केवल यहीं पे होती है ना, कि अगर इंटरनेशनल NGO है तो उसको बोलेगा इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ट्रीटी है. तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हो तो जस्ट लुक एट दीज थिंग्स. ठीक है, अब टू रिस्टोर वर्ड्स लॉस्ट डिग्रेडेड फॉरेस्ट, ऑब्वियस सी बात है, वही काम है इसका. एंड इट रिस्पॉन्ड्स डायरेक्टली टू बॉर्न चैलेंज. ठीक है, बॉर्न चैलेंज क्या है? इसका एक चैलेंज है कि 1 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड 2020 तक, और 350 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है वो 2030 तक डिग्रेडेशन से वापस हटाना है. डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन से वापस उसको यूजफुल बनाना है ना. डिग्रेड मतलब होता है टू रिड्यूस द क्वालिटी. ठीक है, इफ समथिंग इज डिग्रेडिंग मतलब जो उसकी क्वालिटी है वो कम हो रही है धीरे धीरे, और इसके कारण क्या होगा? इट विल नॉट बी यूजेबल इन द फ्यूचर. ठीक है. Next is Bond Challenge. Bond Challenge क्या है? It was launched in 2011 to restore 150 million hectare of degraded land by 2020. 2014 में जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन हुआ था यूनाइटेड क्लाइमेट समिट पे, उस पे इस टारगेट को रिवाइज करके 350 मिलियन हेक्टेयर कर गया था बाय 2030. अभी हमने पढ़ा है. ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट, इट इज वॉलेंटरी एंड नॉन बाइंडिंग. अब उस पर दे देगा इट इज बाइंडिंग, ऑब्वियसली इट इज नॉन बाइंडिंग. ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है. इंडिया ने 13 मिलियन हेक्टेयर बाय 2020 और 8 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030 पेरिस क्लाइमेट में प्लेज किया हुआ है ना. इट मीन्स कितना जो आपकी लैंड है, डिग्रेडेड लैंड है, उसको रिस्टोर करना है. ठीक है. नेक्स्ट है UN स्ट्रेटेजिक प्लान ऑन फॉर फॉरेस्ट. इस पे क्या है? सेट ऑफ 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स, और इट इज मेनली, इसका टारगेट क्या है? टू इंक्रीज फॉरेस्ट एरिया बाय 3%. ठीक है. नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव, बायोफिन. इट वाज लॉन्च्ड बाय UNDP. अब ये चीज याद रखना है, UNDP. ठीक है, in 2012 to develop methods to quantify biodiversity finance gap and to bring cost effectiveness. It also helps in implementing the national biodiversity action plan. ठीक है, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो होस्ट करती है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, सॉरी, इसको लुक करती है और होस्ट करती है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी. ठीक है. नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मतलब वो एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा, इसके क्राइटेरिया क्या होते हैं? एरियाज विथ हाई स्पीसीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म. ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट दिया था मायर्स ने, और इसको अडॉप्ट किया था कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने. ये चीज याद रखना आपको, कंजर्वेशन इंटरनेशनल इज ऑल्सो काइंड ऑफ NGO. ठीक है. क्राइटेरिया क्या है? किस बेसिस पे आप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को अनाउंस कर सकते हो. ठीक है, तो पहला है, इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स, या 0.5% ऑफ टोटल एज एंडेमिक. ठीक है, तो हाई एंडेमिज्म होना चाहिए, अराउंड 1500 जो वैस्कुलर प्लांट्स हैं उससे या उससे ज्यादा का. एंड देन सेकंड जो है, इट मस्ट हैव लॉस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, तो मतलब थ्रेटेंड. तो मतलब क्या होना चाहिए? एंडेमिज्म होना चाहिए प्लस थ्रेटनिंग होना चाहिए. इट इज. ठीक है, दुनिया में इन द होल वर्ल्ड देयर आर अराउंड 36 एरियाज जो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर आते हैं, विथ 2.5% ऑफ अर्थ्स लैंड सरफेस.
इन इंडिया यहाँ पे क्या है कि जो आपका हिमालयाज है वो पूरा का पूरा इंटायर रीजन ऑफ हिमालयाज, देन इंडो बर्मा जो आपका रीजन है उस पे इंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड अंडमान, देन सुंडालैंड्स जो निकोबार आइलैंड्स हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। ये जो आपके रीजन है, जो 4 रीजन है ना, यानी कि हिमालयाज, इंडो बर्मा, सुंडालैंड्स, इट इज डिफरेंट। इंडो बर्मा, अंडमान, अंडमान जो वो इंडो बर्मा में आता है, और जो निकोबार है वो सुंडालैंड्स में आता है, एंड देन वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। दीज आर द 4 हॉटस्पॉट्स रीजन विच आर प्रेजेंट इन इंडिया। नेक्स्ट इज होप स्पॉट, ठीक है। तो हॉटस्पॉट कौन करता है? कंजर्वेशन इंटरनेशनल करता है। जो होप स्पॉट है वो कौन करता है? इट इज डन बाय मिशन ब्लू एंड IUCN, ठीक है। तो इट इज एरिया ऑफ ओशियन विच नीड्स प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ। वहां पे वाइल्ड लाइफ काफी ज्यादा, मतलब समझ लो कि ये जैसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो होता है वो टेरेस्ट्रियल रीजन का होता है ना, तो जो आपका होप स्पॉट होता है वो किस रीजन का होता है? वो आपका मेरीन रीजन का होता है, ठीक है। सो इट कैन बी अंडर मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया ऑल्सो। इंडिया में 2 होप स्पॉट है, पहला है लक्षद्वीप एंड सेकेंड इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। ठीक है, इसको मैं एक चीज अब वी विल स्टॉप हियर टुडेस क्लास। सी अभी एक्चुअली आई एम नॉट इन द वर्किंग स्पेस, आई हैव came to home because there is certain personal things that I have, so I have to look into those things. So tomorrow, because there is a function, so I won't be able to take class tomorrow. तो जो classes है we will ये हम regular रखेंगे next week, मतलब आपका Monday, Tuesday, Wednesday हर दिन क्लास रहेगी जब तक कि आपका इन्वायरमेंट कवर नहीं हो जाता है, ठीक है। सो बिकॉज अभी कुछ फंक्शन है घर में, सो आई कैन नॉट टेक क्लास फॉर लॉन्ग। ऑब्वियसली I will take around 2 to 2.5 hour class in Monday, Tuesday, Wednesday. So I hope कि within 2 to 3 classes we will cover whole of environment, ठीक है। तो ये पहली चीज है कि जो क्लासेस हैं वो आपकी कल नहीं रहेगी, फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो हम इसको जल्दी से कवर करेंगे। देन नेक्स्ट आवर टारगेट इज कि इकोनॉमी में आपका जो आपकी हाई यील्डिंग क्लासेस की जो मैंने लिस्ट बोली थी वो मेरे को कवर करवानी है बिफोर 15th मार्च, है ना। उसके बाद देन वी विल लुक इनटू अदर थिंग्स लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड all other current contemporary affairs and other things which we will be discussing. एक और चीज, because now it is a kind of just a second. हाँ, so it is a kind of a weekly session है, तो we will stop the recording here. तो अब आप लोग को कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो आप पूछ लो। आई हैव कवर्ड मेजर पोर्शन ऑफ एनवायरनमेंट, तो अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो वो आप पूछ सकते हो। किसी स्टूडेंट को कुछ भी पूछना है? सेकेंडरी एक्सटिंक्शन मतलब होता है कि बिकॉज ऑफ एक स्पीसीज जो दूसरी स्पीसीज है वो भी अगर खत्म हो जाती है उसको बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंसेक्ट्स हैं, पूरे के पूरे इंसेक्ट्स मर गए तो उसके कारण ऑब्वियसली बात है छिपकली भी मर जाएगी, है ना, बिकॉज इट वोंट बी एबल टू ईट इट, तो उसको सेकेंडरी एक्सटिंक्शन बोला जाता है। तो कोई क्वेश्चन आप लोग के नहीं है? अगर नहीं है तो आई विल एंड द क्लास हियर। नेक्स्ट जो आपके क्लास है उसका शेड्यूल मैं आपको कल होपफुली नाइट तक, क्योंकि अब जो क्लासेस होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग की जगह हम दिन में रखेंगे, तो जो भी होगा आई विल टेल यू बिफोर हैंड, है ना, एक दिन पहले आपको बता दूंगा तो यू कैन प्रिपेयर। हाँ, जो आपके ये स्टूडेंट्स हैं इनका मैं लिस्ट बना रहा हूँ विच आर रेगुलर इन क्लास, दोज हु आर नॉट रेगुलर इन क्लास। जो रेगुलर इन क्लास नहीं है उनको पीडीएफ अपने पेज पे मिलेगा, क्योंकि दे आर नॉट कंसिस्टेंट इन क्लास अपार्ट फ्रॉम वर्किंग स्टूडेंट। जो रेगुलर है ऑब्वियसली उनको मैं पीडीएफ जल्दी से शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वी विल एंड द क्लास हियर। हाउ टू डील विथ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मेरे को समझ में नहीं आया, आप एक बार बोल के पूछ सकते हो क्वेश्चन? I did not understand the question कि how to deal with national parks and wildlife sanctuaries. चलो कोई नहीं, आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, ठीक है। और कोई अगर if someone want to ask any question they can ask, otherwise I will end the class here. हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुलशन। सर मेरे को भी ये क्वेश्चन पूछना था कि जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जो पार्क्स हैं, वेटलैंड्स हैं, इन सबको
करंट के अकॉर्डिंग अगर याद करें सर लोकेशन वगैरह इनकी, या रफली सबका ये आइडिया होना चाहिए? देखो रफली सबका ही आइडिया होना चाहिए ना, क्योंकि हर साल एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस आपके एनवायरनमेंट के आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्या कहते हैं पूरे जो नेशनल पार्क्स वगैरह उनके आइडिया होने चाहिए। होपफुली आई विल मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल 106 और 10 जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनका, वो मैं पढ़ा दूंगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो यार इतनी ज्यादा है ना कि उनको कवर करवाना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो मैं डिस्कस करा दूंगा, बट एक फेयर आइडिया आपको ज्योग्राफिकल रीजन का होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ जी सर ऑन बेसिक हाँ जी हाँ जी सर बेसिक्स वो 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, लेकिन तब इज दैट ओके? और शंकर आईएसी बेटर है? अभी आपको ये पीडीएफ शेयर करूंगा ना, यही पढ़ लेना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, थैंक यू। हाँ जी आई डोंट नो मोहित आपको कहाँ से कंफ्यूजन हो रहा है, जो अब हम लोगों ने एक अलग ही ग्रुप बना दिया है फॉर लाइब्रेरी, जो लिंक्स है उसके लिए। तो वो जो जो भी लाइब्रेरी वाले क्लासेस होते हैं उनके लिंक हम उस पे ही शेयर करते हैं ना। तो इस जो अगर हम फिनिक्स वाले ग्रुप पे लिंक शेयर कर रहे हैं जूम का, तो वो क्लास का ही होगा, क्योंकि ऑनलाइन लाइब्रेरी वाला हमने अलग ग्रुप ही बना रखा है। सर एक डाउट और था, हाँ जी सर मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया ना, जियोग्राफी से स्टार्ट किया, सो एंड आई एम जस्ट, तो मैं साइमल्टेनियसली कर लूं जियोग्राफी और एनवायरनमेंट, और लाइक शुड आई जस्ट, इफ यू कैन डू साइमक, अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे को नहीं लगता कि इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू कवर बोथ ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। ओके। हाँ जी। और एक और चीज इसी से मेरे को याद आया, आई होप कि अब करंट अफेयर्स आप लोग न्यूज़पेपर के अलावा पढ़ना स्टार्ट कर दियो। कोई भी मंथली मैगजीन आप उठा सकते हो या ईयरली मैगजीन, है ना, मैं किसी भी उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट किसी भी फेमस उसका आप उठा के थोड़ा बहुत, इसलिए रीजन बीइंग क्योंकि जब हम लोग कराएंगे तो इट शुड वर्क एज रिविजन, इट शुड नॉट वर्क एज कि पहली बार आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं, ठीक है। और हम बहुत डिफरेंट तरीके से करवाने वाले हैं इस बार कंटेम्प्रेरी अफेयर्स को, मेनली इशू बेस्ड हम कवर करवाएंगे, ठीक है। तो नाउ आई होप कि ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जस्ट फॉर प्रीलिम्स। अब आप और किसी, क्योंकि नाउ इट इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आल्सो दिस ईयर, मतलब ऑलमोस्ट आफ्टर 5 and 6 years इतनी सारी वैकेंसीज आई हैं। तो आई होप कि 2 सब्जेक्ट्स या 3 सब्जेक्ट्स आपको दिन भर में पढ़ने पड़े, अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स जिसपे आप एवरी डे यू कैन रीड 40 to 50 पेजेस ऑफ करंट अफेयर्स। उसके अलावा अगर इतना पढ़ना पड़े तो दैट विल नॉट बी अ बिग बर्डन फॉर यू। सर फिर कौन से मंथ से स्टार्ट करें? जनवरी 20 देखो, अब आप मंथ के साथ दिक्कत ये है ना कि जो यूपीएससी है वो पिछले 5 साल का पूछ रहा है, पिछले 5 साल में जो भी इश्यूज हुए हैं, ठीक है। बट रीजनेबल जितना भी है तो एटलीस्ट जनवरी 2021 से तो करना ही पड़ेगा। अगर उसके पहले का भी 6 महीने का कर सकते हो दैट इज गुड इनफ, बट एटलीस्ट फ्रॉम जनवरी 2021 टू मार्च और अप्रैल 2022। ओके सर, कोई भी मैगजीन हाँ कोई भी आप फॉलो कर रहे हैं? हाँ कोई भी फेमस, मतलब ऐसे ही मत उठा लेना, कोई एटलीस्ट थोड़ा सा फेमस कोचिंग की। हाँ जी ठीक है, आई विल एंड द सेशन। ऑल द बेस्ट, आई होप आप लोग प्रोडक्टिवली अपने टाइम का यूज कर रहे हो, है ना, बिकॉज इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एंड आई होप कि क्लासेस भी आपके लिए फ्रूटफुल हैं। ऑब्वियसली रेगुलरिटी जो क्लासेस की वो और ज्यादा जैसे ऐसे, अब रीजन बीइंग में बहुत ज्यादा रेगुलर क्लासेस लेने का एक रीजन ये भी है कि जितना मैं पास लूंगा टुवर्ड्स योर एग्जाम्स उतना बेनिफिशियल होगा, बजाय कि अभी से ही मैं पूरी खत्म कर दूं, तो अभी से क्लासेस खत्म हो जाए तो 2 महीने आप रिवाइज कर रहे हो, है ना। तो इट इज बेटर कि अगर लास्ट के टाइम पे हम, स्पेशली जो लास्ट का 1 महीना, हालांकि मैं जाऊंगा नहीं उतना पीछे तक, बट स्टिल अगर लास्ट के 1 महीने पे मैंने पहले भी, अब मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने क्लासेस ली हैं, दोज हैज बीन वेरी प्रोडक्टिव फॉर माय स्टूडेंट्स, है ना। तो अभी धीरे धीरे करके हम काफी पोर्शन कवर कर लेंगे। एनवायरमेंट तो मैं पूरा ही आप लोगों का कवर करवा दूंगा, है ना। मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ पोर्शंस भी कवर करवाने हैं, तो वी विल गो स्लोली ऑन दैट। सो आई विल डिस्कस द क्लास टाइमिंग टुमारो, मोस्ट प्रोबेबली डे में, लेकिन अगर बच्चे ऑब्जेक्ट, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रहती है तो हम इवनिंग में 6 PM रख लेंगे, उसमें भी कोई इशू नहीं, ठीक है। चलो थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.